Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and we are back with the transportation model of project management and operations research. So, in previous videos, we have understood how to find the initial basic feasible solution for a transportation model. So, by using the VAM method, we have found the uh, initial basic feasible solution, which is having a cost of 10,200 for our problem. So that is the minimum cost that we have obtained yet up till now. Up till now we have seen that VAM method is proved to be more accurate than other methods. So by considering this solution produced by VAM method, we will proceed further. Now in next step you have to perform the optimality test. So you have to check whether the solution given by VAM method or whether the initial basic feasible solution obtained is optimal or it is not optimal. So we have to perform this optimality test. So to perform this optimality test, uh, there are two conditions that must be satisfied. Okay, so if these two conditions are satisfied, then only you can perform optimality test. If one of these or both of these conditions are not satisfied, then the solution cannot be tested for optimality. Okay, so always remember, if A and B, these two conditions are satisfied, then only proceed for optimality test, otherwise the problem terminates here. Okay, in IBFS. So what are these two conditions? ये दो conditions कौन सी हैं? So पहली condition हमको बताती है कि जो हमारे number of allocations हैं, जो हमको allocations मिले हैं transportation model में, they should be equal to m plus n minus 1. So what is m here? So m is number of rows of matrix and n is number of columns of that matrix. So in previous matrix you can see here, so we have ABC 3 rows and 1 2 3 4 4 columns. So there are 7, the total is 7. So m plus 1 minus m plus n minus 1 should be equal to number of allocations. So how many allocations have we given here? So there is one allocation here, this is one here, this is third, fourth, fifth and sixth. So we have 6 allocations here, and we have m plus n minus 1 is equals to what? So m is 3, 4, number of columns are 4, so 3 plus 4 7 minus 1 6. So number of allocations here are equal to number of rows plus number of columns minus 1. So first condition here is satisfied for this problem. पहले problem के लिए हमारा ये condition satisfy हो चुका है. अब ये जितने भी allocations हैं, all these allocations should be at independent position. ये कैसे पोजीशन पे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट पोजीशन पे. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एलोकेशन यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 की 6 एलोकेशंस जो हैं, ये सभी कैसी पोजीशन पे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट पोजीशन पे. अब इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या है? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे है? बिल्कुल भी नहीं है. जिसका मतलब क्या है कि अगर हम इन एलोकेशंस में कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन अगर करें हम, या इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज अगर हम करें एलोकेशंस को, सो दे विल नॉट हैम्पर द रिमेनिंग एलोकेशंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एलोकेशन को चेंज करूं, इस एलोकेशन को अगर मैं चेंज करूं, इसको 2 के बजाय 1 के बजाय यहाँ पर अगर मैं 2 देना चाहूँ, आई वांट टू एलोकेट मोर, so whether that will impact these allocations, will impact these allocations. ये होगा क्या? यानी कि अगर मैं कुछ allocations में changes करता हूँ, तो दूसरे allocations भी change होंगे क्या? Okay, so are they dependent on each other or are they independent of each other? So ये कैसा समझेगा हमको? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी allocations रहेंगे, इन allocations से हमको क्या करना है? एक स्ट्रक्चर बनाना है. कौन सा स्ट्रक्चर है? तो हमको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का मिलाकर हमको वो स्ट्रक्चर एक बनाना है.
ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जो एलोकेशंस है इनको मार्क कर लेंगे। ओके, या अगर आप चाहें तो इनका सेपरेट मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मतलब आप चाहे तो इनको सिर्फ सिर्फ इस मैट्रिक्स में क्या लिखो, आप सिर्फ इनके एलोकेशंस लिखो, जैसे कि यहाँ पर आ गया 1। ओके, तो मैं थोड़ा सा अच्छा सा एक मैट्रिक्स मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी मैट्रिक्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो जैसे ये सिर्फ 1 है, 5 है, सिर्फ मैट्रिक्स बनाओ एक रफली, और इसके अंदर क्या करो, जो एलोकेशन है सिर्फ एलोकेशन लिख दो, उसको आप बोल सकते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, सो इन एलोकेशंस की इंडिपेंडेंट पोजीशन हम चेक कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल रूल है कि जो एलोकेशंस है, अगर ये हम एक दूसरे से जोड़े, एक दूसरे से कनेक्ट करें बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, तो इनका जो भी है एक क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, दे शुड नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। हाउ अ क्लोज लूप शुड लुक लाइक, कि जैसे कि मैंने एक पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया है, सो आई हैव स्टार्टेड दिस, सो आई हैव मूव्ड हॉरिजॉन्टली, देन आई हैव मूव्ड vertically, then again I have moved horizontally, then again I have moved vertically, then I have moved like this, and I have again came back to this point, इस पॉइंट को वापस से मैं क्या हो गया, आ गया हूँ। सो दिस इज अ क्लोज लूप, ये कैसा बन गया, एक क्लोज लूप बन गया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का। सिमिलरली एक क्लोज लूप और कैसा हो सकता है कि इस पोजीशन से स्टार्ट किया, इधर मूव किया आपने, इधर मूव किया, ओके, इस तरीके से ये एक क्लोज लूप हो सकता है। और एक क्लोज लूप कैसा हो सकता है, इस पोजीशन से स्टार्ट किया, नीचे आए आप, लेफ्ट में गए, फिर नीचे आए, ओके, फिर राइट में गए, फिर आप जंप किए, फिर ऐसा कनेक्ट किए। सो बाय एनी मीन्स आप कैसा भी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करो, ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसा भी आप ट्रैवल करो, इन अलोकेशंस का क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस पहले एलोकेशन से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि ये सेल A1 जो सेल है मेरी, या 1 1 जो सेल है, इसको से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो मुझे क्या करना है, इस पोजीशन से जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आइदर आई विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके, और आइदर आई विल मूव हॉरिजॉन्टली इन राइट साइड, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी एलोकेशन, जहाँ पर भी एलोकेशन होगा उस हिसाब से हमको मूव करना है। सो कोई भी एलोकेशन से आप हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, अगर उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहीं पर एलोकेशन है तो आप कोई भी एलोकेशन से वर्टिकली मूव कर सकते हैं, अगर उसके वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एलोकेशन है तो। सो जहाँ पर एलोकेशन है उसी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं शुरू करता हूँ इस पॉइंट से 2 से, A1 से शुरू करता हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ, ओके। सो अब मैं इस एलोकेशन पे आ गया हूँ, ओके। अगर मैं चाहूँ तो इस एलोकेशन को जंप कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, इफ़ देयर इज सम एलोकेशन प्रेजेंट हियर, यहाँ पर कोई प्रेजेंट रहता था तो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए इससे जंप कर सकता था, ठीक है। सो सिंस हॉरिजॉन्टल जाने पर 2 से 1 पे, सॉरी, A1 से A2 पे जाने, A1 से A2 को जाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, बट अभी मुझे सिंस मैं एक एलोकेशन पे अराइव हो चुका हूँ, नए एलोकेशन पे आ गया हूँ, यहाँ से एक तो मुझे हॉरिजॉन्टल मूव करना है, या फिर वर्टिकल मूव करना है, या फिर स्किप करना है। सो स्किप तभी कर सकते हैं जब उसके आगे कोई एलोकेशन हो, बट आगे राइट साइड में कोई भी एलोकेशन नहीं है। टर्न तभी कर सकते हैं जब नीचे कोई एलोकेशन हो, तो नीचे भी कोई एलोकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लूप मैंने स्टार्ट किया था, यानी जो मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी लूप बनाने की, वो दो A1 से लेके A2 पे क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। सो देर इज़ नो लूप फॉर्मिंग हेयर इसमें, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ और दूसरे एलोकेशंस के साथ, जैसे कि सेम इसी एलोकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, नीचे मूव किया, यस, नीचे आने पर एक एलोकेशन मिल गया है, सो आई कैन टर्न नाउ। कैसे टर्न कर सकता हूँ, क्योंकि इससे राइट डायरेक्शन में एक एलोकेशन है, सो यहाँ पर आने पर भी मुझे एक एलोकेशन दिखता है, सो आई कैन टर्न फ्रॉम हियर, अगर कोई ऊपर के डायरेक्शन में एलोकेशन रहता है तो, बट देर इज़ नो एलोकेशन इन दैट डायरेक्शन, so I cannot turn in this direction, hence I have to move to some other allocation। so मुझे कोई दूसरे allocation पे move करना पड़ेगा, so I'll skip this allocation। 15 बाय 15 3 वाला जो allocation है वो मैं क्या कर दूंगा,
स्किप करूँगा। ओके, सो यहाँ से शुरू किया, ये स्किप किया। नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ है? सो यहाँ पर नेक्स्ट एलोकेशन है। सो यहाँ से अगर मुझे टर्न करना है तो मैं ऊपर के डायरेक्शन में टर्न कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट स्किप और आई हैव टू टर्न हियर। ओके, सो मैं टर्न करूँगा तो मुझे एलोकेशन दिखता है ऊपर। ऊपर एलोकेशन आ गया। इससे ऊपर कोई है क्या? नहीं है। लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं है। सो इधर भी अगर मुझे मूव करना है तो मुझे कोई एलोकेशन चाहिए रहेगा, तभी मैं इधर मूव कर सकता हूँ, बट देर इज़ नो एलोकेशन प्रेजेंट हियर। सो इस एलोकेशन से तो कोई किसी भी तरीके का लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई विथ सेम मेथड विथ अदर एलोकेशंस। तो अदर एलोकेशंस के साथ में भी यही चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर लूप किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर एट इंडिपेंडेंट पोजिशन। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। सो नाउ आई हैव टू टर्न। सो कहीं पर भी टर्न करूँ, एलोकेशन आगे नहीं है। ओके, फिर मैं इस एलोकेशन से स्टार्ट करता हूँ। सो इस एलोकेशन से एक तो मैं इधर जाऊँगा, ओके, लेफ्ट में, फिर ऊपर, फिर इधर, और फिर टर्न करना पड़ेगा। तो टर्न के लिए जगह ही नहीं है, एलोकेशन ही नहीं है कोई। सो देर विल बी नो लूप्स इन दिस allocations, in these allocations, so they are at independent। तो ये allocations जितने हैं वो independent position पे है, ऐसा हम बोलेंगे। अब लूप कैसा दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलोकेशन ऐड कर देता हूँ। से यहाँ पर कोई भी एक रफली रैंडम एलोकेशन करता हूँ। से यहाँ पर एक एलोकेशन है, सपोज करो, इमेजिन करो यहाँ एक एलोकेशन। सो जब मैं इस दो एक वाले एलोकेशन से स्टार्ट करता हूँ, आई मूव टू दिस डायरेक्शन, आई स्किप दिस 15-3, देन आई मूव टू 9-1, देन आई मूव टू दिस 7 एंड दिस एलोकेशन, और ये मैं यहाँ से लेफ्ट में आ जाता हूँ। सो ये बन गया एक क्लोज लूप, बराबर है। इसके क्लोज लूप के हर एक कॉर्नर पे क्या है? एक एलोकेशन आप देख सकते हो, बराबर है। सो हर एक कॉर्नर पे एक एलोकेशन है। हमने 15-3 वाला जो एलोकेशन है ये वाला स्किप किया है, और ये वाला भी स्किप किया है। अगेन और एक क्लोज लूप कैसा बन सकता है? सपोज यहाँ पर कोई एलोकेशन है, इस जीरो वाले पर कोई एलोकेशन जैसे 1 है। सो इसका क्लोज लूप कैसा बनेगा? यस, इसका बनेगा, यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो आई विल मूव टू दिस डायरेक्शन, टू दिस डायरेक्शन, फिर मैं इधर मूव करूँगा। चाहे तो यहाँ पर टर्न कर सकते हैं, बट ऊपर कोई भी एलोकेशन नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे और 9-1 की तरफ मूव करेंगे। 9-1 से 1-1 की तरफ मूव करेंगे, and then I'll move to this direction where I have this allocation 0-1, और ये 0-1 कनेक्ट हो जाएगा इससे। सो देर इज़ वन लूप फॉर्मिंग हियर, एक क्लोज लूप क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। सो ऐसे एलोकेशंस अगर हैं जो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, सो दे विल नॉट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो ये प्रॉब्लम हमको यहीं पर टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। वैम मेथड से ही हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा, देन वी डू नॉट नीड टू मूव इन फर्दर प्रोसेस। सो ये दो कंडीशंस हमको टेस्ट करते आनी चाहिए। अब हमने ये दोनों भी कंडीशंस जो है इस सोल्यूशन के लिए, वैम मेथड से मिले हुए सोल्यूशन के लिए टेस्ट की है। क्या है हमारी दो कंडीशंस? तो m+n-1 ये कितने हैं? 6 है, जो है इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। अगेन ये 6 के 6 एलोकेशंस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, क्योंकि कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये 6 के 6 एलोकेशंस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो हमारी दोनों भी कंडीशंस हमने क्या कर लिए हैं? चेक कर लिए। सिंस both the conditions have been fulfilled, we can proceed for testing this solution। इस solution को टेस्ट करने के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो solution को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड, और दूसरी है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या जिसको हम यूवी मेथड बोलते हैं, या फिर मोडी मेथड भी बोलते हैं। मोडी मतलब क्या? मॉडिफाइड। ये मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये मॉडिफाइड का मोडी है। ओके, ठीक है। सो ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम करेंगे बाय यूजिंग स्टेपिंग स्टोन एंड मोडी मेथड। तो पहले समझ के लेते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हमको क्या करना है कि जो हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स को टेस्ट करना है। कौन से सेल्स को टेस्ट करना है? तो अभी मैं आपको सेल्स का डिफरेंस बताता हूँ। तो ये जो सेल्स आप देख रहे हो जिसमें एलोकेशन है, जिसमें एलोकेशंस है, ये जो है ये फील्ड सेल्स है, या इसको बोला जाता है बेसिक सेल, जिनके अंदर एलोकेशन दिया गया है। ओके, जितने भी सेल्स में एलोकेशंस है
ये सब सेल्स कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे, इसीलिए सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ओके, सो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक सेल जिसमें है वो है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये हो गए हमारे बेसिक सेल्स। जो वैकेंट है, जो खाली है, इनको एक तो वैकेंट सेल बोलेंगे या इनको हम बोलेंगे नॉन बेसिक सेल। क्या बोलेंगे, नॉन बेसिक सेल। सो बेसिक सेल्स और नॉन बेसिक सेल्स के बीच में हमको क्या करना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। देखो हमने इसका z मिनिमम निकाला है, z मिनिमम कितना आया इसका, 102 रुपये, यानी 10,200, बिकॉज द प्राइजेस आर इन हंड्रेड्स। सो ये कब आया z मिनिमम, जब हमने इन बेसिक सेल्स का जो प्रोडक्ट है उसका समेशन किया, प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉस्ट विथ एलोकेशन, यानी 2 into 1, यानी 3 into 5, 5 into 6, 15 into 3, 9 into 1, 1 into 1, इन सभी नंबर्स का हमने क्या किया है, समेशन किया है, तब जाके हमको z मिनिमम कितना मिला है, 102। अब पॉसिबल हो सकता है इनमें से कोई एक एलोकेशन जो है जब वैकेंट सेल पर गया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस एलोकेशन ऑफ 1 1, if it is given to this 0 1 cell, if it is given to this 0 cell, यानी जो वैकेंट सेल है वहाँ पर अगर एलोकेशन दिया जाए, ओके, विदाउट हार्मिंग द सॉल्यूशन, ऐसा एलोकेशन अगर दिया जाए और यहाँ से ये एलोकेशन हटा दिया जाए, तो मे बी ये जो z मिनिमम है ये क्या हो सकता है, और रिड्यूस हो सकता है। सो वी हैव टू टेस्ट दिस सॉल्यूशन बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड फॉर द वैकेंट सेल्स। जो भी वैकेंट सेल रहेंगे, जितने भी रहेंगे, इन सभी सेल्स पर हम क्या करेंगे, एक एक एलोकेशन देकर क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। सो जहाँ पर हमको 102 जो कॉस्ट है इससे कम कॉस्ट मिल जाएगी, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से कम होने वाली कॉस्ट और कम होने वाली कॉस्ट मिलेगी, सो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि हमने अभी तक देखा है पहले इसमें 116 मिले, फिर 112, फिर 102, और 102 से और कम हो सकती है क्या कॉस्ट भाई, तो ये चेक करना है स्टेपिंग स्टोन मेथड से। ठीक है, सो हमको क्या करना है, जो भी वैकेंट सेल है इन वैकेंट सेल का इवैल्यूएशन करना है। क्या करना है, इवैल्यूएशन। अब हम ये इवैल्यूएशन जो है ये 1 by 1 करेंगे। कैसा करेंगे, 1 by 1 करेंगे। सो 1 by 1 करने के लिए सपोज हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो 1 by 1 करेंगे। सपोज वी सेलेक्ट वन ऑफ द सेल्स, से जिस सेल सेलेक्ट करते हैं C2 जो है, ये वाला सेल जो है 32, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है। ओके, सो टेस्ट करने के लिए इसका इवैल्यूएशन मुझे करना है। इवैल्यूएशन करना है मतलब क्या, कि मैं यहाँ पर एक एलोकेशन दे के देखूंगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर +1 कुछ इस तरीके से लिखूंगा। सो आई विल राइट +1 हियर, +1 क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर रफली। ठीक है, अब इसका इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमको कुछ इसमें बैलेंसिंग भी करना ज़रूरी है। मतलब अगर मैं इस 8 को एक आइटम सप्लाई कर रहा हूँ, यानी इस 8 C2 नंबर की जो सेल है या 32 जो है मेरा, अगर मैं इसको 1 2 और 3 बोलूँ, तो ये 32 नंबर का जो सेल है, दिस स्पेसिफिक सेल, इसको जब मैं एक आइटम सप्लाई करता हूँ तो मुझे वही एक आइटम दूसरे किसी सेल से, यानी इन सेल्स में से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, क्योंकि एक आइटम उधर से सप्लाई होने वाला है, राइट। सो आई हैव टू बैलेंस द रिम कंडीशन। मुझे क्या करना है, रिम की कंडीशन बैलेंस करना है। सो जब मैं यहाँ पर एक ऐड करूँगा, सो पैरेलली मुझे ऊपर से एक माइनस करना पड़ेगा और इधर से एक माइनस करना पड़ेगा। तो कैसा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वैकेंट सेल को सेलेक्ट करने के बाद, सो ऐसा टिक करने से मैं क्या करता हूँ, ये बताता हूँ कि मैं इसका इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। सो आफ्टर टिकिंग दिस सेल C2 और 132, ठीक है, या 32 जिसको मैं बोलूँगा, सो इस सेल को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, सो आई विल फॉर्म ए क्लोज लूप। एक क्लोज लूप मैं क्या करूँगा, फॉर्म करूँगा बाकी के हमारे जो भी एलोकेशंस है उनके साथ में। सो मैं इसके साथ क्लोज लूप कैसा फॉर्म कर सकता हूँ, तो जैसे कि मैंने अगर इस डायरेक्शन से ऊपर मूव किया तो यहाँ पर एक एलोकेशन आ गया है। इस एलोकेशन से मुझे राइट या लेफ्ट टर्न करना होगा।
सो राइट में तो कोई एलोकेशन नहीं है, इसलिए मैं किधर टर्न करूँगा, लेफ्ट में करूँगा। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से मुझे राइट और लेफ्ट या ऊपर नीचे टर्न करना होगा। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे एक एलोकेशन है, इसलिए इधर मूव करूँगा। अब यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से वापस टर्न करना है, सो वापस टर्न मैं करूँगा। सो ऐसा मैंने एक क्लोज लूप फॉर्म कर दिया 3 एलोकेशंस का और एक वैकेंट सेल का। तो ये ऐसा क्लोज लूप हमें हर एक वैकेंट सेल के लिए बनाना है, हर एक। सो मैं 3 2 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया। सो इस क्लोज लूप के हर एक कॉर्नर पे मुझे क्या लिखना है, जैसे कि 8 है, 8 से शुरू किया तो +1 लिखना है यहाँ पर। तो उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे लिखना है -1, ठीक है। उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे लिखना है +1 और उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे लिखना है -1। मतलब यहाँ पर +1 एलोकेशन ऐड होगा, यहाँ पर माइनस एलोकेशन रिमूव होगा, यहाँ पर एक एलोकेशन ऐड होगा, यहाँ पर एक माइनस होगा। इन दिस वे जो हमारी रिम कंडीशन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं। आ रहा है ध्यान में। सो प्लस कॉर्नर पर जहाँ से शुरू किया वहाँ पर +1, उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे माइनस, उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे प्लस, उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे माइनस। ऐसा अल्टरनेट एक एक एलोकेशन क्या करना है, आपको चेंज करना है। ये हो गया हमारा स्टेपिंग स्टोन का पहला स्टेप। इसके वजह से क्या होगा, एक कोई भी वैकेंट सेल जो नॉन बेसिक है वो क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम दे देंगे एक एलोकेशन। और मे बी कोई एक सेल जो बेसिक है वो हो सकती है नॉन बेसिक हो जाए। नॉन बेसिक हो जाए मतलब वो क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सो वी आर सिंपली कन्वर्टिंग वन ऑफ द सेल्स टू अ बेसिक सेल, वन ऑफ द वैकेंट सेल्स टू ए बेसिक और ऑक्यूपाइड सेल। ओके, सो वो कन्वर्ट करने पर हम हमारा z मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा वेदर द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय गिविंग सम एलोकेशंस हियर। जब एलोकेशन यहाँ देता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, ये टेस्ट करना है। सो कैसे करेंगे टेस्ट, तो ये मैंने बना दिया एक क्लोज लूप, जहाँ पर मैंने दे दिया है, देखो यहाँ पर दिया है एक +1, यहाँ दिया है -1, यहाँ दिया है +1, यहाँ दिया है -1। ऐसा हर एक कॉर्नर को देना है, और ये ऐसा क्लोज लूप आपको डॉटेड लाइन से क्या करना है, फॉर्म करना है। अब ये C2 या 3 2 जो नाम की सेल थी, ये जो 8 वैल्यू वाली सेल थी, इसका एलोकेशंस जो है, ये बचे हुए एलोकेशंस से क्लोज लूप फॉर्म करती थी। अगर मैं ये वाली सेल लेता हूँ, तो ये वाली सेल किससे क्लोज लूप फॉर्म करेगी, ये वाली सेल इनसे क्लोज लूप फॉर्म करेगी, बराबर है। अगर मैं ये 0 सेल लेता हूँ तो ये वाली किससे फॉर्म करेगी, तो वो मुझे, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पर है, ऐसा है, ऐसा है। सो इट विल फॉर्म लाइक दिस, क्लोज लूप सेल ऐसा फॉर्म करेगी। ओके, सो ये सब आपको प्रैक्टिस से करना होगा कि कौन सी सेल किसके साथ क्लोज लूप फॉर्म कर सकती है। ओके, सो इसने फॉर्म कर दिया इन बचे हुए 3 सेल के साथ। अभी इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, तो 3 2 नंबर का जो सेल है, जो 3 2 नंबर का सेल है, इसका इवैल्यूएशन जब मैं निकालता हूँ तो ये वैल्यूज सब किस में दी है, रुपीज़ में दी है, हंड्रेड्स में दिए हैं। सो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब मैं इनका इवैल्यूएशन निकालता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना है, 8 मल्टीप्लाइड बाय +1, ओके, प्लस this 3 multiplied by this -1, this cost multiplied by this -1, this cost 2 multiplied by this +1। इनको क्या करना है, इनका समेशन करना है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, ओके। नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो -5। नेक्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो +1 है तो ये +2, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये -3। तो इसका जो सेल इवैल्यूएशन है वो आता है 2 रुपये और मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये हो जाएगा +200 रुपये। अब ये +200 रुपये का मीनिंग क्या है वो समझ के लो। इस +200 का ये मीनिंग है कि अगर मैं यहाँ पर एक एलोकेशन देता हूँ, कितना, एक एलोकेशन अगर देता हूँ, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है z मिनिमम जो है, उसमें 200 रुपये का क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्लस का साइन क्या है, इंक्रीज होना। मतलब आई विल एड अप 200 रुपीज़ इफ़ आई एलोकेट हियर। अगर मैं यहाँ से एलोकेशन देता हूँ, मतलब एक आइटम अगर C से लेके 2 को जा रहा है, ठीक है, तो वो 200 रुपये का खर्चा क्या बढ़ा देगा, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ा देगा।
तो बेहतर है जो पहला वाला है उससे ही काम चलाया जाए, बराबर है। सो ये तो कर दिया मैंने किसके लिए, सेल 3-2 के लिए या सेल C2 के लिए। ओके, सेम चीज़ मुझे करनी है हर एक वैकेंट सेल के लिए, हर एक वैकेंट सेल के लिए। ओके, सो हर एक वैकेंट सेल के लिए जब मैं करूँगा तो मैं नेक्स्ट सेल के लिए करता हूँ। सपोज मैंने जो पहला सेल है उसके लिए किया तो उसके लिए कितने बढ़ रहे हैं, 200 रुपये बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला करता हूँ 1-3 करता हूँ। 1-3 कौन सा है, सेल A3 यानी ये वाला सेल है। इसके लिए जब मैं करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1+1। ठीक है, अब इसका क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। सो क्लोज लूप राइट में जाने पर नहीं फॉर्म होगा, क्लोज लूप किधर फॉर्म हो रहा है देखेंगे। सो क्लोज लूप नीचे जाने पर फॉर्म होगा, ऐसा इसका क्लोज लूप फॉर्म होगा। ठीक है, इसका ये क्लोज लूप कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो ये सेलेक्ट कर दिया मैंने सेल और ये कर दिया मैंने क्लोज लूप फॉर्म। सो यहाँ पर जहाँ से शुरू किया है वहाँ पे +1, जहाँ पे मुड़ा है वहाँ पे -1, उसके आगे वाला +1, उसके आगे वाला -1। ठीक है, तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 प्लस में है तो +11, -15 माइनस में तो ये -15, +5 प्लस में है तो +5, 2 माइनस में है तो -2। तो ऐसा कुछ किल मिलाकर मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -100। अब इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो भी सेल है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन ऑफ जो सेल किया है, सेल का इवैल्यूएशन जो किया है, इससे अगर मैं यहाँ पर एक एलोकेशन देता हूँ, कितने एलोकेशन देता हूँ, इस सेल पर अगर मैं एक एलोकेशन देता हूँ तो इससे मेरा 100 रुपये जो है टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आई विल एलोकेट दिस सेल, मैं इस सेल को क्या करूँगा, एलोकेशन दे दूंगा। वो कैसा देना है तो वो हम आगे की इसमें देखेंगे, बट मैं क्या करूँगा, इस सेल पे एक एलोकेशन दूंगा। मेरा 100 रुपये क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। सो आई हैव मूव्ड 1 स्टेप फर्दर टूवर्ड्स दी ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगेन ऐसा मुझे सिर्फ इस सेल पर करके रुकना है क्या, नहीं, मुझे हर एक सेल के लिए करना है। तो सेल इवेल्यूशन 1-4 का, 1-4 बोले तो कौन सा है वो, ये वाला सेल। इसको जब करूँगा तो यहाँ पर देखता हूँ कि +100 हो रहा है। उससे नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट वाला जब देखता हूँ तो कौन सा है सेल, सेल 2-1 है। सेल 2-1 कौन सा है, तो ये 2-1 है। इसमें करने पर कितने बढ़ रहे हैं, 400 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट वाला देखता हूँ, यस, 2-1 के बाद मैं देखता हूँ तो सेल 2-2 है। 2-2 कौन सा है, तो ये 2-2 है। यहाँ पर करने पर कितने बढ़ रहे हैं, 200 बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेल अगला वाला देखेंगे। अगला सेल क्या है, 2-3 है। तो अगला 2-3 सेल कौन सा है, तो ये 2-3 सेल है। तो यहाँ पर करने से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, देखो 100 से कम हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं एलोकेशन देने का ट्राई करूँगा। उससे नेक्स्ट वाला कौन सा है, हो गए क्या सभी, उससे नेक्स्ट वाला है क्या कोई, यस, नेक्स्ट वाला है 3-2 है। 3-2 मतलब ये हमारा 3-2 है ये सेल। यहाँ पर कितना हो रहा है, 200 से बढ़ रहा है। ओके, सो ये सभी एलोकेशंस जो है हम कंसिडर करेंगे। इसमें जो माइनस रहेगा वहाँ पर हम नए एलोकेशंस देंगे। तो ऐसे ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मेरा जो 10,200 है वो इस सेल पर एलोकेशन देने से 100 से और कम होगा, और इस सेल पर एलोकेशन देने से 100 से और कम होगा। मतलब मैं इसको 10,000 तक मिनिमम ला सकता हूँ। और तो ये हम करेंगे आगे के मेथड्स में। ओके, ये स्टेपिंग स्टोन मेथड यही ख़त्म होती है। इसके बाद हमको क्या करना है कि अगले वीडियो में मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखना है। अब ये मेथड कैसी है, इसमें आप क्या करते हो, एक एक सेल का मैन्युअली कैलकुलेट करते हो। हर बार एक सेल लिया, उसको मैन्युअली उसका इवैल्यूएशन कैलकुलेट किया। वो इवैल्यूएशन अगर प्लस आता है तो ठीक, माइनस आता है तो क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे, बराबर है। तो ये आपको मैन्युअली क्या हो सकता है, बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो ये थोड़ी सी प्रोसेस हेक्टिक हो सकती है, लेंदी हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स का, पूरे वैकेंट सेल का, सभी जितने भी वैकेंट सेल हैं इन सभी वैकेंट सेल का सेल इवैल्यूएशन एक साथ निकालेंगे मोदी मेथड में। ठीक है, मोदी मेथड में हमको क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स का इवैल्यूएशन निकालना है। तो वो कैसा निकालना है तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।